Hello students, I am Amit Pandey, Senior Faculty in Physics, your Physics mentor. So welcome to Physics of Class 9th. So students, सबसे पहले तो what is physics है ना, बहुत सारे आप में से लोग सोच रहे होंगे कि how will you define physics? There is no fixed definition. You know, physics word comes from the word physicus. It was a Greek word. Like the word science come from the word scientia, okay, which means nature. So physics is just, you can say, study of nature and natural phenomenon. Or better words, we can say physics is the branch of science in which we study the laws which govern the nature. So this is, we can say, the definition of physics. Okay, so students, let's start the first chapter, that is motion. Okay, the first chapter, the name of the chapter is motion. So what you understand with the term motion? क्या होता है? How will you define the motion? Okay, so am I in motion right now or not? Tell me, am I in motion? Well, before describing motion, let's discuss some basic points. Position. Okay. Among these two words, none of them is like which you are hearing first time. आपने सबने ये चीज़ सुन रखी पहले. Position. Sometimes we call someone and say, what's your position? You guys use WhatsApp, and I'm sure you don't use WhatsApp, but your parents use WhatsApp. So whenever they have to locate themselves or they have to tell someone else that where are they right now, they send their location, current location, using WhatsApp. And in current location, whenever they get it on mobile, and then they start, trying to know that what is the actual position of that person. So when they start the app, then it shows go to left, left or right, or you can say straight or taking a U-turn. There are multiple options. Okay, which means location. Suppose you are in a city and you are searching something, like you are in search of SKM school. So you will write SKM school in your mobile app, okay, in your maps, then it will show you SKM school. So it will be like the arrow which may indicate go to left, which may indicate go to right, depending on your position. Suppose this is SKM school, okay, anything if I may take, this is SKM school and your house is here. Then in your location, in your maps, it will show you to move left, go straight. Okay, then you will find SKM school. But if your place is here, if you are staying here, your home is in this direction, then the map will say come out from the home, take right, go straight, and you will reach to SKM school. Okay, if you are here, that will make you to come this side. If you are right now here, the map will show you the direction which leads to SKM school. So every time if you compare with your friends, in everybody's phone, it won't be the same. You can't say that in my phone, location sent, the location was saying that go to left and go 1 kilometer straight. But in someone other's phone, like phone of your friend, the same thing, the same, you can say, position of SKM school may be shown by given some different kind of direction, like go to right and go 1 kilometer and you will find SKM school. I hope you are getting me, है ना? अलग अलग लोगों के फ़ोन में अलग अलग डायरेक्शन है. You will call your friend and will say, यार आपका फ़ोन में क्या लोकेशन दिखा रहा है? Then will say, यार in my phone it is saying go to north and then take left and then you will find SKM school. तो हाँ, देखो, बात तो सभी का फ़ोन बिल्कुल सही बता रहा है. सभी लोगों का फ़ोन जो है वो बिल्कुल सही बता रहा है. They all are giving the correct answer, but that result is not same. Why? This is because the word position. Your instantaneous location measured from a reference point is called position. Okay, suppose you are here. You will say, sir, what is the position of this point, or what is the position of you here? I'll say I don't know how to describe, because I do not have a reference point. मेरे पास reference point नहीं है. यहाँ पे reference point है, मैं कहूँगा east, west, north, south directions. So I'll have a reference point. Suppose this is a reference point. This is called the origin. Reference point is the point from where you feel that you are standing there and you comment on someone's position, that where he is. Like I am a reference point.
Okay, if you'll say like where is Suresh, so I'll say okay, I'm here. Suresh, suppose Suresh is here, so I will say Suresh is in my right direction, my right hand direction, 10 kilometer distance. If Mahesh is there, so I'll say that I am the reference point, so I will say Mahesh is in my left hand direction 10 kilometers suppose. So that is called location. Okay, I am the reference point. But if suppose there is another person, Ramesh, he is in the left side of Mahesh, suppose, ठीक है, देखो महेश इधर है, okay, this is Mahesh and this is Ramesh. According to Ramesh, Mahesh is in his right, but according to me, Mahesh is in my left. So it depends on the reference point called origin. So this is the position. You will say sir ये देखो यहाँ से ऐसे, this is his position. तो सर ये मान लो this is north, this is east, this is west and this is south. Then I will locate your position like this. Okay, चलो आपने ऑनलाइन कुछ मंगाया, ओके, यू ऑर्डर्ड पिज़्ज़ा. संगरिया में पिज़्ज़ा मिलता है क्या? पता नहीं. अच्छा चलो, you ordered pizza or you ordered some dress from Myntra, Amazon, Flipkart. Okay, then what you do you just order and send money and you think that it will come to your home? No, you will have to feed your address. You will have to feed your address. If suppose I'm not giving my address, I'm just saying all right, Domino's, give me 4 pizza, I'm paying you money. He will just say okay sir, pay money, but he will also ask, sir, what is your location? Okay, then I'll send him my location, street number, this district, what we say, pin and ward, mohalla, gali. I hope you understand. तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं, तो आपको बताना पड़ता है कि आप कहाँ पे हो. तो अभी मैं कहाँ पे हूँ? मैं आई एम इन ग्रामोत्थान विद्यापीठ. If I want if I want my any friend to come here and meet me, I will send him my location as well as you can say my written address. I will say all right, first come to India, then come to Rajasthan, then come to Hanumangarh district, then come to Sangaria, then come to SKM school, or I'll say in Ramothan Vidyapith. Okay, so this is what we call location, position. I hope you understand. रेफरेंस पॉइंट है ना, तो रेफरेंस पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट सबसे पहले तो संगरिया आ जाओ, ठीक है. तो इस तरह से बच्चों हम लोग इसको पढ़ते हैं. आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, है ना. मोशन, पोजीशन, आपका इंस्टेंटेनियस लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड योर पोजीशन. चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड मोशन. चेंज इन पोजीशन. अब मुझसे कोई पूछे मोशन का जो डेफिनेशन है, सो आई विल से change in position with respect to time. Change in position with respect to time. Also with respect to reference point. That will be called motion. Change in position with respect to time, also with respect to reference point. ठीक है, ये मैंने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया डेफिनेशन को, बट सिंपली बात है कि यार चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रेस्ट. व्हाट इज रेस्ट? नो चेंज इन पोजीशन. No change in position with respect to reference point. Okay, अच्छा, तो यहाँ के बात क्या आती है बच्चों? देखो, इसको समझना पड़ेगा आपको. डेफिनेशन तो बहुत आसान मिल जाएगी, देयर यू विल गेट अ लॉट ऑफ डेफिनेशंस इन द बुक, बहुत सारी डेफिनेशन. बट आपको मतलब समझना पड़ेगा कि भाई आपको पोजीशन चेंज करनी है. सबसे पहले तो आपकी पोजीशन क्या है? पोजीशन इज़ योर इंस्टेंटेनियस लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट. अब चेंज इन पोजीशन, देखो ये मेरी पोजीशन है, मैं चेंज कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑल्सो, क्योंकि टाइम तो हमेशा बढ़ रहा है. तो मैं यहाँ से यहाँ आ गया, दिस इज़ माई चेंज इन पोजीशन. ओके, देखो मेरी पोजीशन लगातार बदल रही है.
So I am in motion. Yes, you are right, I am in motion. But with respect to whom? किसके रिस्पेक्ट में? तो देखो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, ये मेरी वायर जो है इसको मैं इधर कर देता हूँ, मेरे पैरों में फंस जाएगी नहीं तो ये तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात जो है बच्चों आपको नोट करना है वो ये है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव. रिलेटिव डजंट मीन कि ये मोशन रेस्ट के मामा का लड़का है, ऐसा नहीं है, ठीक है, या इसकी बुआ का लड़का है. इट्स नॉट लाइक दैट. रिलेटिव मीन्स हमेशा इट ऑलवेज डिपेंड्स विद रिस्पेक्ट टू whom. फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ पे अटेंशन, है ना. देखो सपोज आई एम इन अ ट्रेन, ओके, माई ट्रेन इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड पैरेलल टू मी देर इज़ अनदर ट्रेन, उसमें भी कोई पैसेंजर है एंड बोथ द ट्रेन आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. तो जितनी बार भी मैं मुँह लेफ्ट साइड में घुमाऊंगा, आई विल ऑलवेज सी द माई फ्रेंड देयर. ओके, डजेंट मैटर, आई एम ऑल्सो इन मोशन. माई ट्रेन, देखो मेरी ट्रेन यूँ जा रही है, हिज ट्रेन इज ऑल्सो गोइंग इन द सेम डायरेक्शन. ओके, वेन एवर आई विल टर्न माई फेस इन लेफ्ट, आई विल सी दैट पर्सन. सो आई विल से यार यू आर इन रेस्ट. वो बोलेगा वाई रेस्ट. मैं कहा वेन एवर इफ़ यू आर इन मोशन, देन वेन एवर आई चेंज माई वेन एवर आई वॉन्ट टू सी यू, आई एम ऑलवेज एबल टू सी यू. वेन एवर आई टर्न माई neck in left side, I always see the same scene, the same vision. So I'll say that you are in rest, you are at rest. He will say no, I am in motion. I will say okay, prove that you are in motion. He will say according to a person who was standing at the platform, who was his relative, who came to the railway station to drop him. ओके, जो उसको मतलब कि क्या कहते हैं ना, वेल ड्रॉप करने हैं, वेल एंड ड्रॉप. He says that when his train moved in forward direction, his friend was left behind. He says according to him I am in motion and he was right. वो बिल्कुल ठीक बोल रहा था. भाई ट्रेन चली, रेलवे स्टेशन पे एक आदमी खड़ा है, मैं आगे बढ़ा, रेलवे स्टेशन का आदमी पीछे रह गया, तो मैं कहूँगा आई एम इन मोशन. वाई? क्योंकि उसकी देखो पोजीशन बदल गई. समझ रहे हो? या रेलवे प्लेटफॉर्म तो अपनी जगह पे है. क्या रेलवे प्लेटफॉर्म अपनी जगह से गया क्या? नहीं. बट रेलवे प्लेटफॉर्म से ट्रेन तो निकल गई, सो ट्रेन इज़ इन मोशन. रेलवे प्लेटफॉर्म अपनी जगह पे ही है, ट्रेन आगे चली गई. बट दोनों ट्रेनें एक दूसरे के कंपैरिजन में रेस्ट पे है. बोथ द ट्रेन्स आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर. वाई? फर्स्टली दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन. सेकेंड, देयर स्पीड इज सेम स्पीड. अगर स्पीड कम ज़्यादा होगा तो एक ट्रेन आगे निकल जाएगी, दूसरी आगे निकल जाएगी, ऐसा होगा. तो दोनों साथ साथ चल रही हैं एकदम आराम से. देखो यूँ बिल्कुल. सो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के हिसाब से दे बोथ आर एट रेस्ट. बट विद रिस्पेक्ट टू प्लेटफॉर्म दे बोथ आर इन मोशन. क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म तो अपनी जगह पे है, ट्रेन आगे से निकल गई, तो आई विल से द ट्रेन इज एट रेस्ट. बट उस ट्रेन के साथ एक और ट्रेन है, दोनों जा रही हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा. तो आप समझ पा रहे हो बच्चों, वन पर्टिकुलर थिंग, वन पर्टिकुलर बॉडी कैन बी कंसिडर्ड एट रेस्ट, can be considered as in motion depending on frame of reference या with respect to whom. ठीक है, एक बॉडी जो है उसे आप रेस्ट में भी बोल सकते हो किसी और चीज़ के कंपैरिजन में, उसे आप मोशन में भी बोल सकते हो किसी और चीज़ के कंपैरिजन में, और ये दोनों पॉसिबल है. ठीक है, कुछ बात दिमाग में बैठ रही है आपको, करना क्या है. सो देखो ऐसा क्या है, करते क्या है, मैं यहाँ से यहाँ पे चल रहा हूँ. ओके, आप भी मेरे साथ साथ मूव इन द सेम डायरेक्शन. मैं यूँ मूव हो रहा हूँ, आप भी मूव हो रहे हो, और हम लोग बात करते हुए चल रहे हैं. वी आर इन अ गार्डन में बात करते करते चल रहे हैं. सो वी बोथ आर एट रेस्ट. वाई? बिकॉज वी बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, एक साथ, सेम स्पीड. वेन एवर आई टर्न माई फेस, आई विल से ओह फ्रेंड हाउ आर यू. ओके, देन ही विल से या आई एम वेरी मच फाइन. आफ्टर 3 seconds आई विल अगेन से ओह हाउ आर यू, बिकॉज ही इज ऑलवेज इन पैरेलल टू मी, मेरे साथ साथ चल रहा है विथ सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन. So I will say, you are at rest. He will say, why you are calling me rest? I'll say, as compared to me, your position is not changing because whenever I see in right, I always find you. He will say, यार बात में दम है. Okay. Then he will say, sir, whenever I turn my face in left, I always find you doing the same thing. So it means you are also at rest. तो मैं कहूँगा हाँ इसकी बात में भी दम है. So we both are at rest with respect to each other. But third friend of mine who is sitting on a bench, he is watching us. Okay, that we are traveling like this, he is here.
तो पहले हम उसके पास आए, उसको बोले हेलो एवरीथिंग इज ऑलराइट, ओके, I kept on moving. Then he says, according to that person who is sitting there, we both the friends, those moving in the same direction, are in motion. The person, जो एक ऐसा व्यक्ति जो वहाँ बैठा हुआ है, बेंच पे बैठा है ना, as compared to him, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आई एम इन मोशन. वाई? बिकॉज वो अपनी जगह पे था, पहले मैं इतना दूर था, फिर मैं और नज़दीक आया, फिर और नज़दीक आया, द डिस्टेंस क्लोजेस, आई जस्ट सेड हाय हेलो हाउ आर यू एंड देन आई मूव्ड. सो अगेन देर इज़ अ चेंज इन माई पोजिशन. पहले मेरे उसके बीच में डिस्टेंस इतना था, बाद में डिस्टेंस कुछ कम हुआ, फिर कम हुआ, देन अगेन इंक्रीज्ड. सो चेंज इन पोजिशन. तो एज़ कम्पेयर टू हिम, यू नो, जो पर्सन बेंच पे बैठा है उसके रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूँ, और जो दोस्त मेरे साथ साथ चल रहा है उसके कंपैरिजन में मैं रेस्ट में हूँ. आगे बात समझें? अरे कई बार ऐसा नहीं होता, जब आप ट्रेन में बैठे हो, अचानक बगल में एक और ट्रेन है, ट्रेन चली और आपको पता भी नहीं चला कि यार किसकी ट्रेन चली, अगर आपको जर्क महसूस ना हो, इनर्शिया प्रॉपर्टी. सो यू विल सडनली से आई एम नॉट श्योर हिज ट्रेन इज मूविंग और माइन मूविंग. देन यू विल सडनली सी प्लेटफॉर्म एंड द सेम पुली एंड सेम पीपल आर सिटिंग देयर. देन यू विल से ओहो ये तो उसकी ट्रेन चली है यार. So why you couldn't decide this without watching that railway platform? Because you were not able to select the frame of reference. Some train is in this direction. Suddenly the position changed. Then I thought यार इसकी ट्रेन आगे गई तो हो सकता है वो चली हो, और ये भी हो सकता है कि हमारी ट्रेन पीछे चली गई हो. So I could not decide. To decide any object, to decide the condition of any object, whether it is in motion or it is in rest, we must have a frame of reference. तुरंत हमने मुंडी घुमाई, then we saw railway platform, and then we saw okay my train, because deep inside the heart we all know railway platform cannot move. तो हमारे दिमाग में था कि रेलवे प्लेटफॉर्म मूव नहीं करेगा, तो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा कि इसके मुकाबले हम वहीं खड़े हैं, मतलब हम रेस्ट पे हैं. सो दिस इज़ अबाउट रेस्ट एंड मोशन. कुछ दिमाग में बात बैठी? ठीक है. तो बच्चों डेफिनेशन, रेस्ट मतलब कोई पोजीशन में चेंज ना हो, मोशन मतलब चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट हो, एंड दे बोथ आर रिलेटिव क्वांटिटी. रिलेटिव है यानी कि रिश्तेदार नहीं है. इसका मतलब कि एक चीज़ को आप मोशन में भी बोल सकते हो, रेस्ट में भी बोल सकते हो. ठीक है. इसका डेफिनेशन का मतलब है हियर, एनी बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज एट रेस्ट और कैन बी कंसिडर्ड इन मोशन डिपेंडिंग ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है. इसको वीडियो को वापस करके इसकी डेफिनेशन लिख देना. तो ये हमारा बेसिक पॉइंट था बच्चों. कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. आई होप आपको ये लेक्चर दिख रहा होगा और समझ में तो खैर आ ही रहा होगा. ठीक है. तो ये बात हो गई. अच्छा, अब हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है बच्चों? चलो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ दें थोड़ा सा. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चलो बात आती है डिस्टेंस. एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी. एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस. बस यही है डिस्टेंस बच्चों, एक्चुअल पाथ लेंथ. ठीक है. अच्छा, डिस्टेंस, ये फर्स्ट पॉइंट है डिस्टेंस के बारे में. सेकंड पॉइंट है डिस्टेंस इज स्केलर. 11th में आपको पढ़ा देंगे. वैसे स्केलर का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली. ठीक है. अच्छा, इसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होती. थर्ड पॉइंट आपको है, बता देते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कांट बी जीरो और नेगेटिव. ये दिमाग में रख लेना बच्चों. डिस्टेंस, अब बात आती है कि भैया डिस्टेंस क्या है. एक्चुअल पाथ लेंथ. चलो मैं बताता हूँ कैसे. स्केलर कैसे है, पाथ लेंथ कैसे है. आपने बोला सर इस डायरेक्शन में, आपने बोला कि सर मैं इधर 2 किलोमीटर चला. ठीक है. आपने कहा सर आपने 2 किलोमीटर मूव किया, मैं फिर इधर 2 किलोमीटर चल गया.
आप बोलो सर आपने इधर 2 किलोमीटर चला, इस साइड में भी 2 किलोमीटर चल सकता हूँ, तो एक्चुअल पाथ लेंथ मेरी डिस्टेंस है। अब मैं आपको बताता हूँ, दिमाग देखो। सपोज माई होम ओके इज सपोज 2 किलोमीटर डिस्टेंस from SKM school in left direction. Okay, suppose I am not giving you actual address. Okay, my house is in 2 kilometer distance, is at 2 kilometer distance from SKM school in left direction. So I just start, I start my bike and I directly went to my home. So I just covered 2 kilometer distance. Okay, petrol कितना खर्च होगा? जितना 2 किलोमीटर में खर्च होता है, that will be the cost of the petrol. If somebody asks, sir, you are going to your home is 2 kilometer away from the school, then what will be the cost, actual cost of the petrol which is burnt? So I will say, अच्छा यार 2 किलोमीटर में इतना पेट्रोल लगेगा, that's okay. But suppose again I forgot the way. तो मैं यहाँ पे हूँ, suppose this is SKM school, this is my home and I covered this path. इधर से पहले मैं BED कॉलेज गया, फिर उधर मैं बिश्नोइयों के मोहल्ले गया, फिर घूम घाम के उधर से मेन मार्केट से हो के ब्रिज क्रॉस करके, जैसा कि तुम लोग करते हो, है ना, तो उधर से घूम के फिर मैं यहाँ पे अपने घर गया. Still, the distance between my home and SKM school is 2 kilometer, but I traveled 5 kilometer. क्यों? Can I argue with petrol? क्या पेट्रोल से झगड़ा कर सकता हूँ, dispute? I will say यार the distance between yesterday when I directly went to my home from the school, I just covered 2 kilometer and this was the petrol consumption. But why today the petrol consumption is increased? आज इतना बिल क्यों बढ़ गया अभी मेरा? Then petrol will say, sir, yesterday you only covered 2 kilometer distance, but now you covered 5 kilometer. Path length is 5 kilometer. I will again say, yaar, still my original point, from the point where I started my journey and the point where I end my journey. I'll say both the points are same, still same. He will say, sir, doesn't matter. पेट्रोल जो आपका खर्च होता है, जो बर्न होता है, that depends on the path length covered. If you will increase the path length, the petrol consumption will also be increased. Doesn't matter your initial and final point. This is we call distance, actual path length. अब यहाँ से मैं फ्लाइट पकड़ के दिल्ली चला जाऊँ, दिल्ली से मैं वापस आ जाऊँ, अगेन जो डिस्टेंस कवर्ड है वो मेरा 400 and 400 8 किलोमीटर 800 हो जाएगा, 800 किलोमीटर. यू नो द रीज़न ये है कि डिस्टेंस इज़ पाथ लेंथ. मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ. ओके, आई सेड ओके 2 स्टेप, अगेन आई केम बैक the same point, 2 step, so the distance is 4 step. Suppose my 1 step is equal to 1 meter. Okay, my 1 step equal to 1 meter, so in right direction I am taking 1 step. Okay, so this is 1 step, 1 meter, 2 meter, again 1 meter, 2 meter. So the point from where I started my journey, I am still at the same point. Okay, the point of start of journey and the point of end of journey, they both are same. What will be distance covered? 4 meter. Why? Because 1 meter इस साइड में, again 1 meter which is 2, again 1 meter in reverse direction, but that will be count 3, and again 1 meter to come at the original point 4. So 2 meter आगे और फिर 2 meter पीछे. My point of journey start and journey end is same. Still I covered 4 meter. So this is called distance. Distance इज़ स्केलर, है ना, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, मैं कॉलेज रोड की तरफ जाऊंगा तो भी पेट्रोल मेरा सेम फूकने वाला है. मैं मार्केट जाऊंगा तब भी मेरा पेट्रोल सेम फूकेगा. 2 किलोमीटर कहीं भी चल लूँ, आई वोंट से कि यार पेट्रोल इन राइट डायरेक्शन इफ़ आई गो तो थोड़ा सा कम खर्चा बैठाना, लेफ्ट साइड में जाऊँगा तो थोड़ा कम बचाना. ऐसा नहीं है. पेट्रोल कहेगा भाई 2 किलोमीटर कहीं भी चला लो, अपना तो सेम रेट. दिस इज़ वी कॉल डिस्टेंस, है ना. तो ये बात आती है. अच्छा, डिस्टेंस ऑफ ट्रेवल बाय ए मूविंग बॉडी कांट बी जीरो और नेगेटिव. कोई भी मूविंग बॉडी है उसकी जो कवर डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं होगी. अरे जीरो डिस्टेंस हो ही नहीं सकती यार. तुमने ज़रा सा मूव किया तो डिस्टेंस तुम्हारी काउंट हो गई, जीरो तो हो नहीं सकती. तुम वापस आओ डबल हो जाएगी. अच्छा, नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि भाई डायरेक्शन का कोई इसके अंदर सेंस ही नहीं है. ठीक है, तो ये तो बात हमने की डिस्टेंस की. तो जैसे मैंने आपसे कह दिया, चलो मैं डिस्टेंस साथ एक बार डिस्प्लेसमेंट पढ़ा देता हूँ आपको. Displacement. So what is displacement? Displacement is shortest distance between
इनिशियल एंड फाइनल, shortest distance between initial and final point, okay, is called displacement. Okay, so this was the first point. Second point, displacement is vector. ठीक है, इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है. ठीक है, अनदर very very important point, displacement of a body, of a moving body, can be positive, can be negative, and also it can be zero. नज़र आ रहा है क्या बच्चों? देखने दो यार. ठीक है, तो ये आपके पास जो हो गया जी, तो ये क्या है, जीरो भी हो सकता है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, सब चीज़ें हो सकती हैं. तो इसको बहुत अच्छे से नोट कर लो. टेक द स्क्रीनशॉट. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर है, बट डिस्टेंस क्या है, स्केलर. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग बॉडी कांट बी जीरो और नेगेटिव, बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी जीरो. ठीक है, तो ये देखो दोनों में फ़र्क क्या है. डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है. डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, जीरो हो सकता है. डिस्टेंस स्केलर है, ये वेक्टर है. डिस्टेंस जो है एक्चुअल पाथ लाइन ट्रेवल्ड बाय बॉडी है, ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटा देता हूँ बच्चों, फिर हम एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. चलो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों. एक क्वेश्चन आपके सामने लिख देता हूँ एंड यू जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ. तो बच्चों बात कुछ ऐसी है, सो दिस इज़ द डायरेक्शन डायग्राम, दिस इज़ द ओरिजिन, माई होम. ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है. ठीक है, चलो. तो बच्चों मुझे ये बताओ, आई स्टार्टेड द जर्नी, आई वेंट 10 किलोमीटर टू ईस्ट. ओके, आई वेंट 10 किलोमीटर टू ईस्ट. तो यहाँ से यहाँ तक मेरे को 10 किलोमीटर पड़ा. फिर आई मूव्ड 20 किलोमीटर टू नॉर्थ डायरेक्शन. सो मेरा फेस पहले तो यहाँ पे है, अब मैं नॉर्थ डायरेक्शन, तो मैं ये यहाँ आ गया इस पॉइंट पर, बिकॉज देखो यहाँ से ईस्ट चलना था, तो ईस्ट आई वेंट 10 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन. देन आई कवर्ड 20 kilometer in north direction. Now my face is facing toward north. Okay, I'm facing toward north. Then suddenly I traveled 40 kilometer in the west direction. देखो मैं यहाँ घर पे था, किसी ने मुझे बोला कि 10 किलोमीटर ईस्ट में चलो, तो मैंने कहा 10 किलोमीटर ईस्ट. ओके, 10 किलोमीटर ईस्ट. Then suddenly said turn left and travel 20 kilometer. So turn left means I turn toward north. I traveled 20 kilometer. Then somebody said again turn left and now move 40 kilometer. So I said okay, 40 kilometer. Now I understand this is 10, so this is also 10. तो देखो 30 इस साइड में आ जाएगा. So this will be total 40 किलोमीटर. अरे समझ गए, यहाँ से 40 किलोमीटर इस साइड में ट्रेवल करना है. somebody said sir cover 40 kilometer in this direction. So I'll say okay, if this is 10, this will be also 10. So means after 10 kilometer I'll be at this point. Then I should again move here 30 kilometer. So hence total will be 40. देखो 10 ये है, 30 ये है, 10 और 30 40, 40 किलोमीटर. ठीक है, अच्छा. अब उसके बाद में क्या है, फिर अगेन
वो किसी ने मुझसे पूछा, बोला कि सर अभी क्या डिस्टेंस है आपका आपके घर की तरफ से। तो मैंने बोला कि यार घर की तरफ से मुझे टोटल डिस्टेंस अभी आपको देखना है, ठीक है। तो अभी देखो क्या हुआ कि किसी ने बोला कि सर व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज टोटल डिस्टेंस traveled by Amit। Second question, what is net displacement? What is net displacement traveled by Amit? चलो बच्चों बताओ इन दोनों का आंसर कैसे निकालोगे। What is total distance traveled by Amit? What is net displacement traveled by Amit? दोनों का कैसे पता लगाओगे? तो दोनों का पता लगाने के लिए what you need to do guys, चलो let's solve. What is the total distance traveled by Amit? So distance is nothing but path length traveled. Let me see if I have another color pen. If I have, I have here, red pen. So what is distance? So distance is the total path covered. So I was here. So first I covered 10 kilometer. So answer में क्या आएगा सबसे पहले तो 10. Then I covered 20. So 20, which means 10 plus 20. Then I covered 40. So the net distance will be answer 10 plus 20 plus 40. ठीक है, तो ये कितना आ गया 10, 20, 40, 20, 60, 70। तो ये आ गया हमारे पास 70। ठीक है, 70 मीटर डिस्टेंस। अरे यूनिट दोनों की मीटर होती है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, जिसमें भी मेजर करना हो। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द अमित? तो देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए वी आर ओनली कंसर्न्ड अबाउट इनिशियल पॉइंट, और यू कैन से द पॉइंट वेयर आई स्टार्टेड द जर्नी, or and final point, the point where I end the journey, when the journey was ended. Okay, so the initial point of start of journey is this, and the point where the journey got end is this. Okay, so the net distance, the shortest distance between these 2 points, तो ये displacement होगा. In case of distance, you don't need to just go with the starting and ending point. You need to calculate total path. So 10 plus 20 plus 40 is distance. But in case of displacement, you are only concerned about the shortest distance between initial point and final point. जिधर जर्नी शुरू हुई that point, और जहाँ जर्नी एंड हुई ये point. तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा देखो. So total is 40. Here the total distance is 40. This is 10. So this is also 10. अरे ये 10 है तो पैरेलल 10 होगा. दिस टोटल जर्नी इज 40 किलोमीटर. इस 40 में से 10 हटा दो तो ये जो है दिस वन इज ओनली 30. पूरा 40 10 हटा दो ये 30 है. अच्छा दिस इज 20 तो भैया ये भी 20 हो जाएगा. ठीक है, सो पाइथागोरस लगा दो. पाइथागोरस रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर. ठीक है भैया. अरे यहाँ इसको कैलकुलेट करें ना हाइपोटेनियस को. सो दिस इज 20, दिस इज 30. पाइथागोरस के हिसाब से करो. सो 20 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर कितना हो गया ये आपके पास? ये हो गया रूट ऑफ 400 प्लस 900. सो दिस इज अंडर रूट 1300 मीटर और किलोमीटर जिसमें भी जर्नी दिया है. 1300 को आप चाहो तो 13 इंटू 100 कर दो. सो यू कैन राइट रूट ऑफ 13 इंटू 10. वट एवर द वे यू कैन राइट, वट एवर, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो इस तरह से यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन. सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा स्टूडेंट्स. अपने वैल्यूएबल कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में देखें. सो दिस वाज मोशन पार्ट 1. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी हैविंग मोशन पार्ट 2. टिल दैट थैंक यू.